Good morning, students. Today we are going to study about the High Court. That is the question that had come for the month of the March 2023, what we have written exam. Describe the powers and functions of the High Court. You can see fourth chapter, you can see on your screen. This is our High Court, Telangana High Court. Clear? The Chief Justice of the High Court name is Ujjal Bhuyan. Ujjal Bhuyan. The High Court is the head of the all other districts. High Court is the stands for the head of the state and judicial administration. After the establishment of the Andhra Pradesh, when Andhra and Telangana was divided, then the High Court is made in the Amravati in 2019. And there are other 25 High Courts in India. 3 other High Courts, one is in Mumbai, Guwahati, and Chandigarh. They have one or more than in the other states. Among the union territories, Delhi, Jammu and Kashmir also, they are having the separate high courts, because we have studied about the governors also. The same governor can be the governor of 2 or more states. Same like few states are having only one high court and they are sharing with the other states and one chief justice. So in some union territories, there is no high court. So they share with the other states. And you know, we are having 6 union territories, and that in the different states with in that high court, the article is 214 to 231. In our constitution, this has given the different structures and functions of the High Court. This is the composition. Just now I told the Chief Justice name, that is Ujjal Bhuyan. You can see on your screen the pic. It's there. Composition. What are the compositions? Let us study about the composition. The High Court have the Chief Justice and other judges. These Chief Justice and other judges are appointed by the President. From time to time, it may change when the President wants to change. The Constitution provides the appointment of the judges for the period of the 2 years. And their appointment is done at the time of urgency of working in the High Court. So next we are going to see appointment, how the appointments are done. The President appoints the Chief Justice. He have the consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. Chief Justice of India means the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the state. The President always have the discussion and aid and advice with the Chief Justice and the governance. Whenever he wants to take an important decision, he have the discussion. And let us see the procedure of appointment of the judges. The Chief Justice will have the consultation with the High Court to appoint some other judges.
And one more thing we can see that the president can transfer these judges from one high court to another high court. In India, the transfer can be done to any part of the India, any state. These are the transfers. So let us see the qualifications that required for the High Court Chief Justice. First, the point is he must be the citizen of India. He must have held the judicial office at least for 10 years in the territory of India. Means in any part of the India, any territory, he should work for the 10 years. यानी एक तो वो शहरी होना चाहिए, पहला पॉइंट वो है. दूसरा ये है कि वो 10 साल वर्क किए होना है उनको कहीं भी कोई भी स्टेट में इंडिया में. और वो next point, he must have acted as an advocate for 10 years in one or more high courts in succession. Means he should work for the 10 years. यानी वो एडवोकेट का वो पोस्ट संभालना होगा उन्हें at least for 10 years. उनकी क्या सैलरी है और क्या अलाउंसेस है, नेक्स्ट अपन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आप. अभी एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस की सैलरी है 2,50,000 और वो चीफ जस्टिस के साथ कई और जजेस रहते हैं. फॉर अदर जजेस ऑल्सो इट्स द सैलरी ऑफ 2,25,000 और their salary and allowances cannot be reduced during their term except in case of financial emergency. ये लोग की सैलरी एंड अलाउंसेस जो भी ये लोग को दिया जा रहा है कम नहीं कर सकते. हाँ, मगर एक टाइम पे एक केस ऐसा होगा जहां पे कम कर सकते हैं. वो कौन सा केस है? वो फाइनेंशियल इमरजेंसी. अपन प्रेसिडेंट का जब पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी एक इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी के दौरान अपन किसी की भी सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं. बस वो एक ऐसा केस हो तो तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी कम कर सकते हैं. हाई कोर्ट के कॉम्पोजिशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन, सैलरी एंड अलाउंसेस यहाँ तक पढ़ चुके हैं. फिर नेक्स्ट लेट अस सी द टेन्योर. टेन्योर मीन्स कितने साल वर्क कर सकते हैं. टर्म, टेन्योर बोलो या टर्म बोलो एक ही बात है. हाउ मेनी इयर्स the High Court Chief Justice can work. Every judge of a High Court holds the office till he attains the age of 62 years. A judge can resign by forwarding a letter to the President. Means what? इसे क्या कहते हैं? हाई कोर्ट का जज को कोई पर्टिकुलर ईयर्स नहीं दिया गया है. वो 5 years कर सकते हैं वर्क, 10 years कर सकते हैं, कितने भी साल वर्क कर सकते हैं, बट एक जगह आके रुकती है. 62 years अगर हो गई है जज की तो जब उनको हटा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जज 52 या 55 years में अपॉइंट हो गए एज अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, तो उनको आफ्टर 5 years नहीं रोक सकते हैं. वी कांट स्टॉप for the Chief Justice of the High Court. But when he attains the age of 62 years, we can stop him. तब वो जॉब से हट सकते हैं. अब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी अदर पोस्ट में 5 years का टर्म दिया गया है, बट ये चीफ जस्टिस जो है उनके लिए 62 years ही है. पहले 60 years थे, अब 62 years कर चुके हैं. हाँ, एक और बात, जज कैन रिजाइन. जज रिजाइन कब कर सकते हैं? जब वो चाहे. उसका प्रोसीजर क्या है? लेट अस सी. अ जज कैन रिजाइन बाय फॉरवर्डिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट. जज रिजाइन कब कर सकते हैं? एक लेटर दे सकते हैं प्रेसिडेंट को. वो लेटर काफी है उनके रेजिग्नेशन के लिए. प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेंगे.
मेथड ऑफ रिमूवल, प्रेसिडेंट का रिमूवल क्या था? एक बार फिर से पीछे का पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट का रिमूवल का क्या मेथड था? इम्पीचमेंट था। इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते थे। अभी यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को क्या है? अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। कैसे निकाल सकते हैं अपन प्रेसिडेंट इनको, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को? प्रेसिडेंट मेन है निकालने के लिए। अगर कोई ऐसी हरकत, कुछ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी देख लिए तो प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं। बट उसका प्रोसीजर क्या है? Two houses of parliament approve a resolution, censuration motion to this effect. Such a resolution has to be passed by each house by 2/3 majority of members present and voting. Means क्या है? Both the houses of the parliament वो resolution को prove करना होगा। Both the houses, two houses है अपन, अपना इंडियन गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हमारे पास बाइकैमरलिज्म है। इसके तहत अपने जो टू हाउसेस है, ये जो इफेक्ट है अपने टू हाउसेस में पास होना है और ईच हाउसेस में पास होना कंपलसरी है और ईच हाउस में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को प्रेजेंट होना है। 2/3 लोग अगर प्रेजेंट है और वो लोग वोट करे हैं कि निकाल सकते हैं ये चीफ जस्टिस को, तो ही निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते हैं। अगर इस रेजोल्यूशन में कुछ भी मेंबर्स कम हैं तो ये साबित नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाएं। मेन प्रेसिडेंट है रिमूव करने के लिए ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। क्लियर? अब नाउ let us see the powers and functions of the High Court. High Court के भी कुछ powers and functions है। One is original jurisdiction, one is appellate jurisdiction, next is court of record, next is judicial review. The last one is the administrative functions. One by one, step by step, इस functions के बारे में पढ़ेंगे। What is original jurisdiction? Original, you know, jurisdiction means legal powers. Legal powers क्या है? Next, we'll see that the legal powers means original jurisdiction. The High Court possessed original jurisdiction in case related to the laws and orders of state administration like marriage, divorce, succession and contempt of court. हाई कोर्ट क्या पोजेस कर रहा? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में लॉज एंड ऑर्डर्स पास कर सकते हैं पूरे स्टेट के लिए। देख सकता है हाई कोर्ट जज के लिए क्या देख सकते हैं? कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल मैरिज एंड डाइवोर्सेस का बहुत चल रहा है। इसका मेन देखना सबसे बड़ा वर्क हाई कोर्ट का है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट में कुछ अगर सॉल्व नहीं भी हुआ है तो हम हाई कोर्ट को जा सकते हैं उसके लिए। सक्सेशन एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कॉन्टेम्प्ट का मीनिंग ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई एक्ट है जो ओबे नहीं करती। कॉन्टेम्प्ट मीन्स द एक्ट ऑफ डिसओबेइंग। तो ये सारे वर्क्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में देखा जाएगा। And next important thing, we have studied earlier also this Article 226, the High Court is empowered to issue writs. Writs का meaning क्या है? Order. So ये प्रेसिडेंट के बारे में जब पढ़े थे earlier, फिर से मैं याद दिला रही हूँ बस for recalling I'm telling this. Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto, ये सारे चीजें लैटिन वर्ड्स है। व्हाट इट इज? लैटिन वर्ड्स।
मैं इसके बारे में एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नेक्स्ट विल गो विद द नेक्स्ट वर्ड. You can see that I have given the notes also while telling about the president. आर्टिकल 226 से बिलोंग करते हैं ये. रिट्स का मीनिंग है ऑर्डर. ओके, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, ये सारी चीजें पढ़े हैं. नेक्स्ट क्या है? इंजेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. इंजेक्शंस मीन्स नॉट टू डू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की जमीन के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा, तो सामने वाले को रोकने के लिए क्या करते हैं? जिसकी खुद की जमीन है, जिसका प्रॉब्लम चल रहा है, अपोजिशन पार्टी को रोकने के लिए पहले वो लोग कोर्ट में जाके एक लॉयर के साथ बात करके इंजेक्शन ऑर्डर लेते हैं. इंजेक्शन ऑर्डर का मीनिंग क्या है? अगर कोई कुछ वर्क कर रहे हैं तो उनको स्टॉप करने के लिए, नॉट टू डू समथिंग के स्टॉपिंग के लिए. ये फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट मेथड है अपोजिशन पार्टी को रोकने के लिए. जब कोई एक जमीन है तो उसके लिए कैसे भी तकरीबन आजकल यही चल रहा है कि दो लोग लड़ते हैं. तो जिसकी जमीन है वो ओनर को चाहिए कि इंजेक्शन ऑर्डर पहले ले ले और अपना जो फंडामेंटल है, बुनियादी हक को इस्तेमाल कर सकते हैं. वो ये अपने फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन के, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, settle election disputes of parliamentary members and state legislative members. इसका मीनिंग क्या है? जब इलेक्शन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेल्प कर सकते हैं. वो डिस्प्यूट्स यानी कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं किन किन के बीच में, जैसे कि पार्लियामेंट्री मेंबर्स और लेजिस्लेटिव मेंबर्स, तो वो सॉल्व कर सकते हैं. इलेक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स है, तो अपने चीफ जस्टिस का हेल्प लेके सॉल्व कर ले सकते हैं. नेक्स्ट व्हाट इट इज? appellate jurisdiction. Appellate means appealing. Jurisdiction is the legal power, appealing for the legal power. Next point it is. In that, we are having civil cases. What is the civil cases? Let us see. ये civil cases में क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे. An appeal to the High Court can be made on the decision of a district court or subordinate court, provided that the dispute involves a value of more than 5,000 or a question of fact or law. Civil cases, यहाँ पे हाई कोर्ट में ये देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मीनिंग क्या है? लोअर कोर्ट्स, छोटे कोर्ट्स. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी छोटे कोर्ट्स में अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तो हम हाई कोर्ट के लिए भी जा सकते हैं. और जो डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व है जिसमें मोर देन 5,000 रुपीज का है अगर वो डिस्प्यूट, तो हम हाई कोर्ट को सिविल केसेस में डाल सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? क्रिमिनल केसेस. Cases of punishment for 4 years or more and all cases involving capital punishment awarded by the session court or appealed in the high court. A death sentence by session court shall be approved by the high court. Next, criminal cases. वो क्या है क्रिमिनल केसेस देखेंगे. अब अगर पनिशमेंट दिया गया है फॉर, even the punishment is given for the 4 years or more, 4 साल से ज्यादा या 4 साल के पनिशमेंट दिए गए हैं, या कोई ऐसा पनिशमेंट दिया गया है, या डेथ सेंटेंस यानी उसकी डेथ तक का अगर पनिशमेंट दिया है या फांसी की सजा दी है, तो
हाई कोर्ट को जा सकते हैं अपने चेंज करने के लिए। अगर सेशन कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में सॉल्व नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। High court decisions and judgments are recorded and taken as judicial precedents. हाई कोर्ट में जो भी जजमेंट या रिकॉर्ड किए हैं उसको जुडिशियल प्रेसिडेंस कहा जाता है। यानी जो भी हियरिंग्स हुआ है यहाँ पर तो सीमित है ही। अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ अगर फैसला सही नहीं हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैं एक 5 मार्क्स के आंसर में बताई थी, शायद आप लोग को याद होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशियल रिव्यू मैं पूरा आंसर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई हैव एक्सप्लेन द आंसर क्लियरली। For 5 marks we have studied. So just I'll give the brief idea here. I have explained in the detail. The High Court has the power to review and declare any law or ordinance ultra-virus if it is in contradiction with the Constitution. इसका मीनिंग क्या है? हाई कोर्ट के पास इतना पावर है, अगर कोई फैसला सही नहीं हुआ है, कुछ ऐसा डिक्लेयर हो गया कि अगेंस्ट है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अपन जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूरा पढ़े थे। तो फॉर एग्जांपल केशव आनंद भारती केस का मैं एग्जांपल दी थी और आईसी गोलकनाथ के बारे में। अगर उन जैसे के हैं तो वो पर्सन भी अपील कर सकते हैं कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के द्वारा वहां पे। इसीलिए राइट टू इक्वालिटी वो जो हम पढ़े थे उसमें राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आर्टिकल 31 में निकाल दिया गया है। जुडिशियल रिव्यू के तहत हम हेल्प ले सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स के द्वारा जा सकते हैं कोर्ट को। मैं एक पूरा डिटेल में इसका 5 मार्क्स में बोल दी हूँ। नेक्स्ट इज administrative functions. What is this administrative functions? Under Article 227, every high court has power to supervise its subordinate courts. Article 227 के तहत हर हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट्स यानी छोटे कोर्ट्स को सुपरवाइज कर सकते हैं, उसकी निगरानी कर सकते हैं, देख सकते हैं। Next is it can issue general rules regulating the practices and proceedings of the High Court. सुपरवाइज करना है। और नेक्स्ट क्या है? जनरल रूल्स, जो भी प्रैक्टिसेस और प्रोसीडिंग्स का है हर लिहाज से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कौन देख सकते हैं? हाई कोर्ट्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है? मेन पॉइंट, it can ask for the detail of the proceedings of the subordinate courts, यानी छोटे कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को वो पूछ सकते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और कोई अगर गलती हो रही है तो हाई कोर्ट का काम है, चीफ जस्टिस का काम है अपने लोअर कोर्ट्स अपने अदर जजेस को देखना है, उनको कैसे प्रोसीडिंग्स कर रहे छोटे कोर्ट्स को। इट कैन ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट आर्टिकल 28 के द्वारा। आर्टिकल 28 के द्वारा क्या कर सकते हैं? जो केस है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को भी भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड कैन ट्रांसफर द केस टू इटसेल्फ एंड डिसाइड ऑन द सेम। और एक बात यह है कि वो अपने खुद के कोर्ट में भी ला सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में भी ला सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर?
It can transfer any case from one court to another by the help of the Article 228. Next. It has the power to investigate or inquire into the records or the other connected documents of any court subordinate to it. इसके पास क्या पावर है? हाई कोर्ट के पास चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं कि सबऑर्डिनेट यानी छोटे कोर्ट में क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन पावर है, इंक्वायर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स सारे पेपर्स मंगा के चेक कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द हाई कोर्ट यानी तेलंगाना के हो या कौन से भी पार्ट के हो, चीफ जस्टिस का काम है अपने छोटे कोर्ट्स के पास, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास से डॉक्यूमेंट्स मंगा के चेक कर सकते हैं कि हर कोर्ट का फैसला सही हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट हैज द पावर टू अपॉइंट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ and determine the salaries, allowances, and other condition of the personnel working in subordinate courts. Means High Court के पास power है। क्या power है? It can appoint its administrative staff, यानी उसके staff को appoint कर सकते हैं और उनके salaries, allowances ये भी तय कर सकते हैं। He can fix the salary and allowances also and other conditions of the personal working और other conditions जो personal working है छोटे subordinate courts के लिए वो भी देख सकते हैं। So this you can look on your screen. This is the High Court of the Telangana. So this answer we have completed. It's for 5 marks. What it can come? Describe the powers and functions of the High Court. Okay, students. You can take the screenshot of this. Clear? Yeah. Students, just now we studied about the powers and functions of the High Court of the of any state. Okay. So now let us study about the Finance Commission, financial relation with the center and the state. In the last month, in the month of the March, we had the question of describe the legislative relation between center and state. हमें legislative relation का question आया था एग्जाम में. Now we are going to study about the financial relation. कोई एक relation के बारे में compulsory question आएगा. Last time it was what? Legislative relation. Now we are going to study about the financial relation. It is of 5 marks, the same, but it is important. 5 marks it is, financial relation.
financial relation of center and state. I'm again repeating that India is a parliamentary system. India is having parliamentary system of government, center and state. What it is center and state? So India is related with the center and state. We are having bicameralism and we are having two houses, upper house and lower house. So whatever the functions is going on, everything is related with center and state. It is necessary to have sufficient finance to control the country and to have the relation. See, sufficient finance we require. First point, what it is necessary to have sufficient finance. हमें sufficient finance की जरूरत है. क्यों? To carry out the legislative and administrative, okay, functions. To carry out administrative, to carry out the administrative and legislative functions. कोई भी अगर चीज को चलाना है विदाउट पैसा नहीं चलेगा. इवन अ हाउस, इवन अ कॉलेज और इवन अ स्कूल. छोटी सी छोटी संस्था हो या बड़ी से बड़ी हो, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ स्मॉल और अ लोअर, एनीथिंग, वी नीड मनी. फाइनेंस की जरूरत है. अगर इवन आपको घर भी चलाना हो, घर में तो सारे मेंबर्स होते हैं, हर चीज होते हैं, पर विदाउट पैसे कोई कुछ नहीं कर सकते. घर हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, बिना पैसों के कुछ नहीं वर्कआउट कर सकते हैं. जब हम इंडिया को भी चलाना हो, सबसे पहले इंडिया में फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है. सो फाइनेंस के लिए, फाइनेंस आएगा कैसे, पैसे कैसे आएंगे इंडिया में? हम पब्लिक ही है जो पैसे देते हैं टैक्स की शक्ल में. ये जो पैसे हम टैक्सेस के रूप में देते हैं वो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसी को खर्च करती है. नए नए स्कीम्स, नए नए पॉलिसीज, नए प्रोग्राम्स बना के ये हमारे ही कलेक्टेड टैक्स पब्लिक पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. ये इम्पोर्टेंट है. फाइनेंशियल कमीशन हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो या लेजिस्लेटिव फंक्शन हो, विदाउट मनी कोई भी वर्कआउट नहीं हो सकता और हमें सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है. क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस इफ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट. GOVT means short form of government. Clear? And ये 12th शेड्यूल से रिलेटेड है. 12th part of the Constitution. ये कौन से पार्ट से रिलेटेड है? ये 12th पार्ट से रिलेटेड है. और इसके लिए फाइनेंस कमीशन और 4 अदर मेंबर्स की जरूरत है. ये फाइनेंस के देखने के लिए एक फाइनेंस कमीशन की जरूरत है और फाइनेंस कमीशन एंड अदर 4 मेंबर्स की जरूरत है. इसके लिए टोटल 5 मेंबर्स, एक फाइनेंस कमीशन के लिए एक फाइनेंस कमीशन है और अदर 4 मेंबर्स
की जरूरत है। ये फाइनेंशियल रिलेशन कैसे देखते हैं, सेंटर और स्टेट से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन जो भी बात कर रहे हैं, मेन हायर ऑफिसर्स से बात करते हैं फाइनेंस के बारे में या उसके रिलेटेड है, कौन से स्टेट को कितना पैसा देना होगा, ये सारा विदाउट डिस्कशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हायर ऑफिशियल अथॉरिटीज के बिना नहीं कर सकते हैं। मेन है ना, हायर ऑफिसर्स एंड प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस के बिना नहीं कर सकते हैं। हायर ऑफिसर्स एंड प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस दे विल टेक। फाइनेंस कमीशन को कोई भी डिस्कशन करना है, फॉर द डिस्कशन क्या डिस्कशन कर सकते हैं कि इंडिया को रन करने के लिए कब कितने पैसों की जरूरत है और कौन से स्टेट को कितना अलॉट कर सकते हैं। स्टेट्स को भी विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पूरा हेल्प लेना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट को। इसीलिए ये फाइनेंशियल रिलेशन है सेंटर एंड स्टेट का। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि प्रेसिडेंट मे और मे नॉट एक्सेप्ट द फाइनेंशियल बिल्स। प्रेसिडेंट मे और may not accept all or few means प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, मे और मे नॉट, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, पूरे या थोड़े भी, वो प्रेसिडेंट की मर्जी है। क्या ऑल और फ्यू ऑन रिकमेंडेशन, ऑन रिकमेंडेशन है यहाँ पे ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की मर्जी रहती। तो ये एक रिलेशन बता रहा है, प्रेसिडेंट पूरे इंडिया के लिए है, फाइनेंस कमीशन जो स्टेट का है उनके लिए प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्सेस। जो टैक्सेस कलेक्ट किया जा रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रोसीड्स नेट टैक्सेस प्रोसीड्स इन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल चुकी हूँ कि हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सेस टू अदर स्टेट्स। So this is the important point. Distribution, and he may accept or may not accept. The Finance Commission makes the recommendation. What he do? He makes the recommendation for the president for the continuation or the modification. Finance Commission can recommend to the president. वो प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑन कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मीनिंग क्या है, चेंज करना, ऑन
कंटिन्यू कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द एग्रीमेंट्स। कोई भी एग्रीमेंट पे फाइनेंस कमीशन क्या करते, रेकमेंड करते किसको, प्रेसिडेंट को, या वो कंटिन्यू करे या वो चेंज करे। गवर्नमेंट इज रन, गवर्नमेंट कैसा रन होता है, गवर्नमेंट इज रन ऑन टैक्सेस। गवर्नमेंट कैसे रन होता, मेन क्या है, टैक्सेस है, टैक्सेस के द्वारा गवर्नमेंट रन किए जाती है, इज रन ऑन टैक्सेस, on taxes and expenditure is done टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है और वो टैक्सेस कलेक्ट करते ही एक्सपेंडिचर करते हैं यानी खर्च करते हैं। पार्लियामेंट में 13 सब्जेक्ट्स हैं। पार्लियामेंट इज हैविंग Parliament is related to 13 subjects। 13 सब्जेक्ट्स यानी 13 ऐसी चीजें हैं, 13 ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। बट स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ज्यादा है, is related to 18 सब्जेक्ट्स। स्टेट के पास ज्यादा है और यूनियन के पास कम है। पार्लियामेंट पूरा यूनियन के लिए है, पार्लियामेंट में कम है मगर स्टेट में ज्यादा है। और ये लैंड्स भी है ना, लैंड्स आर रिलेटेड फॉर टैक्स। लैंड से, जमीनों से बहुत सारा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं स्टेट। लैंड्स है ना पूरा स्पेशली फॉर टैक्स ऑफ द स्टेट है, स्टेट के लिए है, इम्पोज किया गया है, स्पेशली स्टेट को दिए हैं लैंड का टैक्सेस का। सेंटर कैन रिस्ट्रिक्ट टैक्सेस ओवर द टैक्सिंग। सेंटर क्या कर सकती है, मेन वर्क क्या है, सेंटर का काम है कि वो रोक सकती है टैक्स कलेक्ट करते जब, कैन रिस्ट्रिक्ट द कलेक्टिंग ऑफ टैक्स। सेंटर के पास इतना पावर है स्टेट को रोकने का ऑफ टैक्स। Students, look at the board. I would like to tell about this 5 marks. Describe the financial relation of center and state. This question may come for your exam in the month of June. You are having exam. So this question may come. Describe the financial relation between center and the state. What it is we are having, what function? Sufficient finance to carry out the administrative and legislative functions of the state and union government। यानी अपने पास उतना पैसा रहना चाहिए लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए। मैं भी एग्जांपल दी थी कि घर हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, विदाउट पैसे नहीं चला सकते हैं। इंडिया को भी कौन सा भी फंक्शन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, कोई भी फंक्शन को रन करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है। और ये कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 12th पार्ट से रिलेटेड है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर। और फाइनेंस कमीशन की जरूरत है एंड अदर 4 मेंबर्स की जरूरत है ये फाइनेंशियल रिलेशंस को देखने के लिए। हायर ऑफिसर्स एंड प्रेसिडेंट के हेल्प के बिना फाइनेंस कमीशन कुछ नहीं कर सकती।
वो लोग हेल्प लेते, एड एंड एडवाइस फॉर द डिस्कशन या इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए हायर ऑफिसर्स की जरूरत है। प्रेसिडेंट में और मे नॉट एक्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे और मे नॉट एक्सेप्ट ऑल और फ्यू। प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे, या थोड़े ले या पूरे को नहीं एक्सेप्ट करे। ऑल और फ्यू, या थोड़े चीजों को भी एक्सेप्ट करते हैं या पूरों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की मर्जी है। रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर भी प्रेसिडेंट की मर्जी होगी। अब मेन पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्सेस प्रोसीड्स टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में। कैसा है, यानी टैक्सेस देने का, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करके वही एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट अपने ऊपर। Finance Commission can recommend the President for continuation or modification of on the agreements. जो भी एग्रीमेंट किया गया है फाइनेंस कमीशन को, प्रेसिडेंट को वो चेंज करा सकती है, या सेम एग्रीमेंट है उसको कुछ और महीने के लिए कंटिन्यू करा सकती है, या साल 2 साल के लिए भी कंटिन्यू करा सकती है। फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के हेल्प के द्वारा कर सकती है। और गवर्नमेंट कैसा चलती है अपनी, कैन रन ऑन द टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर इज डन। ये टैक्सेस कलेक्ट करके ही एक्सपेंडिचर होता है। और पार्लियामेंट में कितने सब्जेक्ट्स रिलेटेड है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, 13 सब्जेक्ट्स है। वही स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर। लैंड्स आर रिलेटेड फॉर टैक्स ऑफ द स्टेट, स्पेशली स्टेट के लिए दिया गया है कलेक्शन ऑफ द टैक्स फॉर इन द लैंड्स, लैंड्स के लिए स्पेशली स्टेट को दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रोक सकते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये प्लेसेस में, ये पार्ट में टैक्सेस को कलेक्ट करना बंद कर सकते हैं, बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट हैव दैट अथॉरिटी। So we have studied now 5 marks of 2 answers. One is about High Court and next is financial relation of the union and state government. State and center and state. Clear? You can take the screenshot or write it down. Okay, students, thank you.